किया और वो एक ऐसी चीज़ थी जो फिर मेरा एक मिशन बन गया, पैशन बन गया, ऑब्सेशन बन गया, आप कुछ भी बोलिए। तो अब उसको 15 साल हो गए, तो मैं उसको निरंतर करता रहता हूँ। जब भी मेरे पास समय मिलता है तो फ्रॉम पुलिस ट्रेनिंग आई टूक अप पुलिस पब्लिक अवेयरनेस बिकॉज़ देयर ओनली वे अकॉर्डिंग टू मी टू फाइट साइबर क्राइम, टू प्रिवेंट साइबर क्राइम इज़ ओनली वन, दैट इज़ अवेयरनेस। Hello friends, my name is Dr. Varun Kapoor. I am a 1991 batch Madhya Pradesh cadre IPS officer. Presently, my posting is Director General Prisons and Correctional Services at Bhopal, Madhya Pradesh. This episode, we are going to talk about the postings of an IPS officer, and I am going to give you my postings, which have been a lot, but all over the world. But I'll give you in a nutshell fast. First, when you join the service, as I said, मसूरी में है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा फाउंडेशन कोर्स हमने वहाँ पे किया। आफ्टर द फाउंडेशन कोर्स वी मूव टू हैदराबाद वेयर नेशनल पुलिस एकेडमी इज सिचुएटेड। वहाँ पे आर बेसिक ट्रेनिंग आई डिड इन NPA from NPA Hyderabad. Then I came back to my state for my state postings, and part of my training was also done here, जिसको district training बोलते हैं। So my first posting can be called Assistant Superintendent of Police in Bhopal district. That's where I got my district training. After that, my first posting came. I was Assistant Commandant 10th Battalion in Special Armed Force Sagar. उसके बाद मेरा अगली पोस्टिंग हुई एज CSP बोलते हैं हमारे MP में, सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय, अब ACP बोलते हैं, तो CSP इन सेंट्रल कोतवाली एट इंदौर। देन आई वाज प्रोमोटेड एंड आई बिकेम एडिशनल SP and I was posted as additional SP Mahu in Indore district, and then I was promoted and became SP City in Indore, and after that I went and joined, I was made commandant of 32nd Battalion Special Armed Force in Ujjain for a few months. उसके बाद I joined the United Nations mission in Bosnia and Herzegovina, and I went to Sarajevo where I was in the mission headquarters as Chief of Research. And the next part of my mission experience, मैं Gorazde बोल के एक जगह है in Bosnia, Canton में, I was the Deputy Chief of Training there. After I returned from Bosnia, I became Superintendent of Police in Dhar district, which was followed by SP in Sihor district. Then I became SP in Ratlam district, and after my postings as SP, I was promoted as DIG. So my first posting as DIG was DIG Chhatarpur range, which is in the Bundelkhand region of Madhya Pradesh. After that, I went for another UN mission to Georgia, United Nations Observer Mission in Georgia. I was police advisor there. So I stayed there for a year. Then I came back to India and I was posted as DIG in Ratlam range. I stayed there for 2 years, and after that I became DIG in Ujjain range. After my DIG part was over, I became Inspector General of Police, and I became IG of Police Radio Training School, my first training center, where I was heading that in Indore. I stayed there for a while. Then I was promoted as additional DG, and I became my first posting was additional DG Narcotics department, which is a special wing in Madhya Pradesh Police. उसका मुख्यालय भी इंदौर में है, तो I was ADG Narcotics in Indore. Then I became ADG Indore Zone. I looked after the entire zone of Indore. And after that, I was made additional DG at Rustamji Armed Police Training College. That was also at Indore. And IGSAF also have been in Indore. And ultimately, I was promoted as DG, Special DG RAPTC. I was for some time. And then I joined in Bhopal as DG Jail and Correctional Services. This has been my journey in the various posts and different parts of the world. मेरा एक बहुत बड़ा पैशन रहा है। मैंने पहले बोला कि मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें करने का प्रयास करता हूँ। तो एक बार मैं एक जगह पदस्थ था, मैं एज आई टोल्ड यू पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, तो वहाँ पे 2011 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। उस समय साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था, पुलिस अधिकारी भी उसके बारे में बहुत कम जानते थे। इट वॉज अ न्यू इवॉल्विंग फील्ड। आज यू कैन सी व्हाट इट इज़। आज भोपाल के पेपर में आया है, इफ़ यू कैन सी 24 साइबर क्राइम्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन 20 आवर्स, यू नो, इट इज़ बिकम सच ए बिग मेनेस। तो उस समय
एज अ एक्सपेरिमेंट, बिकॉज आई लाइक टू डू न्यू थिंग्स, तो मैंने ऐसे ही निर्णय लिया कि चलिए कुछ नया चीज़ करके देखते हैं। आई वॉज इन अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आई हैड सम टाइम एट माई हैंड, तो फिर एज अ एक्सपेरिमेंट हमने एक साइबर ट्रेनिंग कोर्स डिज़ाइन किया। जैसे मैंने बोला, उस समय तो पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, प्राइवेट लोगों को मदद लेके CDR एनालिसिस एंड ऑल भी कराया जाता था, वो भी मैंने देखा है। तो एज अ काइंड ऑफ अ एक्सपेरिमेंट वी थॉट कि चलो विद आवर रिसोर्सेज, विद आवर अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टीज, लेट अस ट्राई टू ट्रेन आवर पुलिस इन वन टॉपिक एट अ टाइम। तो एक ईमेल ट्रेसिंग कोर्स हमने डिज़ाइन किया एंड उसको हमने इम्प्लीमेंट करा 2011, which was not part of my job. I do many things which generally are not part of my job, but I still try to do it so that something good comes out of it. Because if you do something extra, तो किसी का तो benefit होगा उसमें। तो इसीलिए उसको हमने स्टार्ट किया और वो एक ऐसी चीज़ थी जो फिर मेरा एक मिशन बन गया, पैशन बन गया, ऑब्सेशन बन गया, आप कुछ भी बोलिए। तो अब उसको 15 साल हो गए, तो मैं उसको निरंतर करता रहता हूँ। जब भी मेरे पास समय मिलता है तो from police training, I took up police public awareness, because their only way, according to me, to fight cybercrime, to prevent cybercrime, is only one. That is awareness. Awareness is the only key for cybercrime prevention. Cybercrime detection, investigation, police organizations are there, they do it. But आप उसको अपने पे घटित होने से कैसे रोकोगे? वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। कोई आपके लिए साइबर क्राइम से बचाव नहीं कर सकता आपका। नॉर्मल क्राइम, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा काम है अपराध नियंत्रण करना, प्रिवेंशन। तो अगर आप मेरे पास आएँ और बोलें कि मेरे को खतरा है और आप मेरी मदद करिए, तो मैं बहुत सारी चीज़ें एज ए पुलिस ऑफिसर करके आपको सुरक्षा दे सकता हूँ। मैं पेट्रोलिंग कराऊँगा, मैं सर्विलेंस कराऊँगा, मैं प्रिवेंटिव अरेस्ट कराऊँगा, मैं चेकिंग कराऊँगा। सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल जिससे आई विल ट्राई टू गिव यू सिक्योरिटी, प्रिवेंट क्राइम विच मे बी गोइंग टू हैपन ऑन यू। बट अगर आप मेरे पास आके बोलें कि सर साइबर वर्ल्ड में मेरे पे बहुत खतरा है, आप कुछ करिए, मेरे को बचाइए या मेरे को सुरक्षित रखिए, तो मैं कुछ एज ए पुलिस ऑफिसर कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज करना आपको है। आप ही गलत फ़ोन उठा के अपनी पूरी जानकारी दे देते हैं, आप ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इतना बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं, आप ही गलत फाइल डाउनलोड करके अपनी डिवाइस को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। वो गलती कौन रोक सकता है करने से आपको? कोई नहीं रोक सकता, आप ही रोक सकते हो। कोई आपके साथ 24 घंटे बैठ सकता है मना करने के लिए? कोई नहीं बैठ सकता। कोई सिस्टम भी है टेक्नोलॉजी से ही जो आपके और आपकी डिवाइस के बीच में आके आपको ये गलतियां करने से मना कर दे? कोई सिस्टम नहीं। तो कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है एज ऑफ टुडे, तो फिर कौन आपको गलतियां करने से रोक सकता है? आप खुद रोक सकते हो। और अब आपने आपको कब रोकोगे? वेरी सिंपल, जब आप अवेयर होगे, जब आप चीज़ों के बारे में जानोगे और फिर उन चीज़ों को करोगे। तो अवेयरनेस इज़ दी ओनली की टू साइबर सिक्योरिटी एज ऑफ टुडे। सो इसलिए आई टुक अप पब्लिक अवेयरनेस एज अ मिशन एंड उसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए। एक प्रोग्राम मेरा फ्लैगशिप एंटरप्राइज जैसे मैं बोलता हूँ, जिसके लिए भी मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें उसको मैंने नाम दिया था ब्लैक रिबन इनिशिएटिव। रिबन्स जनरली सिग्निफाई सिक्योरिटी, रेड रिबन दैट इज फॉर एड्स अवेयरनेस, सिक्योरिटी अवेयरनेस रादर आई शुड से। पिंक रिबन दैट्स ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, है ना। तो ब्लैक रिबन आई चोज एज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो ब्लैक रिबन इनिशिएटिव मैंने उसको नाम दिया। उसके अंतर्गत मेरे 830 सेशंस हुए हैं इन वेरियस कॉलेजेस, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स। मैंने पूरी दुनिया में करा है, मैं 7 देशों में भी मैंने ऐसे अवेयरनेस सेशंस दिए। एंड आई टॉक वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स विच पीपल अंडरस्टैंड, नॉट टेक्निकल थिंग्स, बिकॉज इट कैन बी वेरी टेक्निकल ऑल्सो। बट टेक्निकल चीज़ें आप बात करो तो फिर सामान्य नागरिक को उसका कोई ना समझ आती है, ना उनको उसका कोई उपयोग होता है। तो मैं बड़े प्रैक्टिकली विद केस स्टडीज़ बताता हूँ। तो इट जनरली मेरे विचार में लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, और जब सोचते हैं तो फिर वो कुछ करते हैं और फिर वो सिक्योर होते हैं। तो दैट इज़ दी थिंग आई हैव डन। एंड मेरे को बहुत सारे फीडबैक मिला है। बहुत लोग मेरे को मिलते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि ज़रा आपकी बात सुनी तो हम बच गए। और ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे, बिकॉज मैंने डायरेक्टली मैं एक रिकॉर्ड रखता हूँ उसका बिल्कुल विधिवत। तो करीब 11 लाख लोग हैं जिनको मैंने डायरेक्टली संबोधित किया है थ्रू दीज सेशंस। तो मैनी पीपल मस्ट हैव बीन बेनिफिटेड, आई एम श्योर, एंड सिक्योर्ड because they became aware and they became alert. So that is one of my missions which I keep doing whenever I have time, and I'm sure it benefits a lot of people.